Good morning, students. Today we are ready with a new topic, refractive index. It is an important topic and you must know this topic before study. The refraction. What is refractive index? Basically, refractive index is the property of a given medium which tells about its optical density. Refractive index is a pure number. So we can define refractive index as it is a pure number which is the measure of optical density of a given medium. It may be represented in two ways, but before coming to that, we must know how it measures the optical density. The medium having higher refractive index are optically dense and the medium having lower refractive index are optically rare. It is a relative term. ये हमेशा दो मीडियम के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी, ये सिंगल टर्म नहीं है, तो इट इज ए रिलेटिव टर्म. जिस मीडियम को मैं अभी यहां पर ऑप्टिकली डेंस कह रहा हूं, दैट मे बी ऑप्टिकली रेयर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, और जिसको मैं अभी ऑप्टिकली रेयर कह रहा हूं, दैट मे बी डेंस विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम. तो वी कैन नॉट से अ मीडियम डेंस और रेयर अनलेस वी कंपेयर इट विद अदर मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज. The first way of representation is its absolute form or absolute refractive index. It is denoted by mu only. Mu इसका symbol है. Basically, out of the two medium, if any one is air, अगर दोनों में से कोई एक मीडियम एयर है, तो फिर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ मीडियम का बिलोंग होगा, मीडियम को जाएगा. And such a refractive index is called absolute refractive index. Mathematically, absolute refractive index is the ratio of speed of light in vacuum oblique air and the speed of light in the given medium. If I assume the speed of light is c in vacuum and speed of light is v in medium, then we can say mu equal to c upon v. C upon v यानी speed of light in air divided by speed of light in medium. But we also know v equal to f lambda यानी velocity equal to the frequency time of wavelength. तो जब मैं c की बात करूंगा तो c can be written as f into lambda a. Lambda a is the wavelength in air and v equal to f upon lambda m. Lambda m is the wavelength in medium. तो here we can say c की जगह f lambda a और f lambda m, f से कैंसिल हो जाएगा, तो mu equals to c upon v और lambda a upon lambda m. Hence, we can define refractive index, absolute refractive index as the ratio of wavelength of light in air and the wavelength of light in medium. Now, the second way of representing refractive index, that is relative refractive index. It is the actual term basically. सही refractive index का term यही है. इसमें हम कहते हैं कि if out of the two medium none is air, दो मीडियम जो मैंने कंसीडर करने हैं जिनके बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है, उनमें से एक भी एयर नहीं है. इन दैट कंडीशन वी से इफ बोथ द मीडियम आर नॉन एयर मीडियम, यानी वी कैन कॉल देम मटेरियल मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम मतलब मीडियम इन विच लाइट इज एंटरिंग with respect to the first medium means from where light is exiting, light is leaving that medium. So refractive index of second medium with respect to first is defined as the ratio of speed of light in first medium, that I am calling v1, to the ratio of to the speed of light in second medium, that I call v2. So relative refractive index it can be written as mu12, and mu12 कैसे पढ़ा जाएगा, जो बाद में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पहले उसके रिस्पेक्ट में, तो mu12 can be read as refractive index of second medium with respect to first medium. जो बाद में लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो पहले लिखा है उसके रिस्पेक्ट में होगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज डिफाइंड एज v1 upon v2, or in terms of wavelength f lambda 1 by f lambda 2. Lambda 1 is the wavelength in first medium, lambda 2 is the wavelength in second medium. So it can be represented as mu12 equal to lambda 1 upon lambda 2.
we also know that v equal to c upon lambda है. अगर मैं इस डेफिनेशन को यहां से रिवर्स करूं तो स्पीड इन ए मीडियम इज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, वहां पर मैंने n के टर्म्स में लिया था जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाई थी. तो v इक्वल टू c अपॉन म्यू, और अगर मैं यहां पर v1 की जगह रखता हूं तो c अपॉन म्यू1 एंड v2 की जगह c अपॉन म्यू2, तो आई कैन से म्यू2 अपॉन म्यू1. तो हम कह सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री वेज. Either it is represented as the ratio of velocity in first and second medium, or it may be represented as the ratio of wavelength of first and second medium, or it may be represented as the absolute refractive index of second and first medium. So this way we can represent relative refractive index, and all the three definitions are very handy for solving numericals. Now the factors upon which refractive index of a medium depend. किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ मीडियम. वो मीडियम कौन सा है ये डिसाइड होगा, उसी से डिसाइड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वो कितना ऑप्टिकली डेंसर है, कितना ऑप्टिकली रेयर है. बट सिर्फ और सिर्फ मीडियम अपने आप से अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिसाइड नहीं करता. ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम. जो मीडियम उसके आसपास है, जो उसको घेरे हुए है, वो भी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिसाइड करेगा. तो टू फैक्टर्स आर देयर व्हिच डिपेंड अपॉन एंटायरली मीडियम इटसेल्फ एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम. वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. द वेवलेंथ आल्सो डिसाइड्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ए मीडियम ऑफर्स डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट और डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट. The medium having higher wavelength will have lower refractive index or vice versa. Moreover, it depends upon temperature. Temperature also decides refractive index. If we heat up a medium, it gets optically rare, यानी उसका refractive index कम हो जाता है. तो with the increase in temperature, refractive index may decrease. Next, it does not depend upon the angle of incidence. ये चार फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस से फ्री होता है. एंगल किस लाइट किस एंगल पर एंटर करेगी ये उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिसाइड नहीं करता. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन मीडिया. कुछ कॉमन मीडियम है जिनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखना है. सबसे पहला जो मेरे पास आता है एयर या वैक्यूम. एयर या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.00069. 3 जीरो के बाद 69 आता है, यानी आई कैन राउंड इट अप एज 1. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और इसको हम कहते हैं 4/3. आइस यानी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रोजन स्टेट में जो वाटर होता है, तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली कम हो जाता है और ये होता है 1.31. केरोसिन की जब हम बात करते हैं तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44 और केरोसिन वाटर से ऑप्टिकली डेंसर है. बट अगर इसकी मास डेंसिटी की बात की जाए तो केरोसिन पानी के ऊपर तैर जाता है, यानी इसकी मास डेंसिटी वाटर से कम होती है, यानी डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेसर देन दैट ऑफ वाटर, बट स्टिल इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर. इसलिए यहां से कंक्लूजन आता है कि एवरी डेंसर मीडियम इज नॉट नेसेसरीली ऑप्टिकली डेंसर. यानी कोई भी मीडियम जो डेंसर है वो ऑप्टिकली डेंसर हो जरूरी नहीं है. इसका एक्सेप्शन यही पर आपने देख लिया. वाटर इज डेंसर देन केरोसिन, बट केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. नेक्स्ट वी स्पीक अबाउट टर्पेंटाइन ऑयल. टर्पेंटाइन ऑयल हैज 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी 3/2 से लेके 1.65 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कलर पिगमेंट्स एंड नेचर ऑफ ग्लास. फ्रॉस्टिंग ग्लास है, वो कलर्ड ग्लास है, ब्लैक टिंट है, या बिल्कुल क्लियर ग्लास है, तो ये डिपेंड करता है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिसाइड करता है. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से लेके 1.65 तक वेरी कर सकता है. नाउ थायोफिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62 होता है. एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 होता है. डायमंड काफी ऑप्टिकली डेंसर होता है और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज
2.62 एंड एट लास्ट द कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ आर आई, हमारी आंख का सबसे फ्रंट पार्ट, ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स वेरियस मीडिया। On the basis of previous study of refractive index, we need to solve few questions here. Let us assume two situations. In situation 1, a light ray is making a transition between air and glass medium, and in the second example I am considering a light ray is making transition between water and glass. Transition का मतलब आना जाना। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है और हमें पता है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहां पर मैंने 1.5 यानी 3/2 लिया है। ग्लास वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने यहां पर लिया है 3/2। यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस यहां पर है, तो आंसर के लिए हम देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। केस नंबर 1, पहला केस, ये कह रहा है म्यू ए जी यानी रे जो है एयर से ग्लास में आ रही है। उस केस में हम क्या कहते हैं, हमें पता है म्यू ए जी यानी इज डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम यानी म्यू जी अपॉन म्यू ए, और म्यू जी कितना है मेरे पास 3/2 और डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कम्स 3/2। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सेकंड क्वेश्चन जो ये कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी मुझे म्यू ए जी चाहिए और हमें पता है ये होगा म्यू ए अपॉन म्यू जी, और म्यू ए मेरे पास कितने हैं 1, म्यू जी कितना है हमारे पास 3/2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी इट कैन बी रिटन एज 2/3 यानी दिस कम 0.6666 एंड सो ऑन। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। एयर का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, बट जब ग्लास के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो इट कम्स 0.666 या यू कैन से 2/3। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन कहता है आई नीड टू फाइंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब जो लाइट है वो वाटर से ग्लास में जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में जो लिविंग मीडियम है वो मेरा वाटर है और जो एंटरिंग मीडियम है वो ग्लास है, तो आई कैन से म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, और म्यू जी मेरे पास है 3/2 और म्यू डब्ल्यू कितना है मेरे पास 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 8। तो दिस इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और इट कम्स जो भी पॉइंट में आएगा 1 पॉइंट, यहां पर फिर मेरे पास 1 आएगा 1.125। तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एट लास्ट ये कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी म्यू डब्ल्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इट इज व्हाट आई कैन राइट म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, और म्यू डब्ल्यू था 4/3 और म्यू जी था 3/2 यानी इट बिकम्स 8/9। तो अगेन सॉल्व इट योरसेल्फ। So this is the way we can find out the refractive index of a pair of media. एक pair of media में हम कैसे refractive index find करेंगे? Now we finally come to the important topic, that is principle of reversibility. Although this topic is not important for exam, but it is important for the applications. Numerical solving में और concept making में बहुत important topic बनता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर सफरिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज रिवर्स्ड इट रिट्रेस इट्स पाथ। एक लाइट रे कुछ मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, कुछ जगह रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन फाइनल इंसिडेंस जो होता है उसका वो किसी ऐसे प्लेन पर हो जाता है जहां से वो अपने पाथ को रिवर्स करती है यानी वापस आ जाती है। जैसे यहाँ इस फिगर में मैंने दिखाया एक लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई और जब ये मीडियम 2 में आई तो यहां पर जाकर एक प्लेन मिरर के ऊपर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो गई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 का हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो जिस एंगल पे आई उसी एंगल पर ये रे वापस जाती है।
तो ये फाइनल पाथ रिट्रेस इसका रिवर्स हुआ, तो अगर ये 10, 12, 15 मीडियम भी घूम के आई हो तो सारे पाथ रिवर्स हो जाएंगे, रिट्रेस होंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। वंस अगेन, if the final path of ray of light is reversed after suffering multiple reflection or refraction, then it retrace its path, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसका एक्सप्रेशन कैसे बिल्ड करते हैं, क्या इससे इंफॉर्मेशन आएगी, लेट अस सी। हमने मान लिया कि जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रांजिशन कर रही है, यानी 1 से 2 में आ रही है, तो उस टाइम स्नेल्स लॉ क्या होगा, साइन आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, साइन आई साइन आर इक्वल टू होगा म्यू 2 बाई मतलब म्यू 1 2। म्यू 1 2 का मतलब है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसको लिख सकता हूं म्यू 2 बाई म्यू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि यहां इसने अपने फाइनल पाथ को रिट्रेस किया है, ये वापस जा रही है। अब लाइट का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में हो रहा है। मीडियम 2 में जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आर, और मीडियम 1 में जो एंगल है आई, उसको मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मानूंगा। तो एक बार फिर स्नेल्स लॉ लिखा जाए इस ट्रांजिशन के लिए, तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर की जगह, साइन आई की जगह मैं लिखूंगा साइन आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास आर है इस बार, तो साइन आर अपॉन साइन आई, और दैट इज म्यू 2 म्यू 1 2, यानी लाइट जिस मीडियम में गई वो बाद में लिखा जाएगा, और जिसको छोड़ के गई वो पहले, तो म्यू 1 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, और इट कैन बी रिटन एज म्यू 1 2। अगर मैं इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दूं तो म्यू 1 2 की वैल्यू है म्यू 1 2 की वैल्यू म्यू 1 अपॉन म्यू 2, यानी अगर मैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1 कर लूं, इस टर्म को रिवर्स कर लूं, तो ये टर्म भी रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू 1 2 लिखा जाएगा। अगर इस वैल्यू को म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को देखो तो ये तो मुझे इक्वेशन 1 में म्यू 1 2 की वैल्यू दे रहा है, म्यू 2 1 की वैल्यू दे रहा है, तो यहां से आई कैन से म्यू 2 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 1 2, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज रेसिप्रोकल to the refractive index of first medium with respect to the second medium. This is the principle of reversibility. This is all about today's class. Thank you for watching.